How are you? I hope so. You all are fine and safe at home. Children, welcome to Nagesh Kurzgi Orchid School TV channel. Myself, Atika Kudle. Children, today we are going to study awareness subject. So, open your awareness skill book and be ready with page number 6 to 62. All are ready? Let's start. Children, in our previous session, we have studied about water. Water means what? Pani, isn't it? Water means what? Pani. You drink water, isn't it? You use water for drinking, cooking, washing your clothes, taking bath, isn't it? For watering plants. Many things you use water. Without water, we can't think to survive our life. हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि बिना पानी के हम लोग अपनी जिंदगी जी सकते हैं, isn't it? For example, now, children, you know water, isn't it? पानी का तो यूज हम लोग करते हैं. क्या आप लोगों को पता है ये पानी कहाँ से आता है, कैसे मिलता है? Yes, I have told you in my previous session, isn't it? Do you remember that? Yes? Okay, fine. I'll make you recall. हमारे नलों में पानी आता है, exactly. But ये नल में पानी कहाँ से आता है? From where do we get water from the tap? In the tap, the water is coming. But from where does that water come in the tap? Yes, correct. You remember. Very good. We get that water from well, rivers, ponds and rain, isn't it? Now let's see. Children, just now I have told you, no, we get water in the tap from the sources of rain. First is rain. If rain is there, this rain water is going to collect in the pond, rivers and well, isn't it? जब बारिश होगी तभी ये बारिश का पानी ये पॉन्ड में जमा होगा, रिवर में होगा और वेल में होगा, isn't it? Then only we are going to get the water in our tap. Okay. Now beside this, children, one more important thing I want to explain you. The forms of water. ये तो आपको पता चला कि पानी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, isn't it? Uses of water. पानी के हम लोग कैसे सेव करेंगे? हम लोग जो यूज करते हैं वाटर, उसको बिना वजह वेस्ट नहीं करना है. हम लोगों को वाटर सेव करना है फॉर फ्यूचर. हमारी जो आगे की लाइफ होगी उसमें हम लोगों को वाटर सेव करना है. So you should use water very properly. Now children, we will come to forms of water. आपको पता है 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं पानी के. For example, ice. Ice is a solid form. Solid form. बर्फ आपको दिखाई देता है ना, बर्फ हम लोग फ्रिज में जमा करते हैं. पानी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रे में रखते हैं या फिर आप उसको एक बाउल में, एक कटोरी में भी रख सकते हैं. तो वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. ओके. देन जब ये सॉलिड फॉर्म मेल्ट होगा, पिघलेगा, तो ये कौन से इसमें जाएगा? वाटर में चेंज होगा. ये जो बर्फ है, ये जब बर्फ पिघलेगी तो कौन से, सी, कैन यू सी, बर्फ पिघल रही है. पिघल के कौन से फॉर्म में आ रही है? लिक्विड फॉर्म में आ रही है. बर्फ क्या है? सॉलिड फॉर्म है. जब ये सॉलिड फॉर्म पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू होता है, तो किस में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में. और ये लिक्विड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? पानी. Isn't it? Can you see these drops of water? आपको दिखाई दे रही है पानी की बूंदें जो ये सॉलिड बर्फ से निकल रही है, isn't it? Now children, I have shown you the solid form,
of water, liquid form of water. Now we are going to see one more form of water. What is that? What is that? Can you tell me? Yes, it is gaseous form. आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? हम लोग जब ये टी पोर कर रहे हैं, हम लोग जब टी ऐसे यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसमें से भाप निकल रही है, isn't it? क्या आपको दिखाई दे रहा है? This is called gaseous form. This is called gaseous form. There are three forms of water: solid, liquid, and gaseous. Just now I have shown you the solid form. Solid form is ice. Liquid form is water. और ये चाय की जो आपको वेपर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, this is called gaseous form. Okay children. Now children, just now I have shown you the forms of water. What are that? Solid form, बर्फ दिखाया मैंने आपको, isn't it? Then liquid form, a glass of water. A gaseous form, आपको मैंने अभी दिखाया चाय का जब हम लोग थर्मस में से निकाल रहे थे तो वहां पे से वेपर्स निकल रहे थे. वेपर्स मतलब भाप. जो भाप निकलती है उसको कहते हैं हम लोग वेपर और गैस फॉर्म. वेपर और गैस फॉर्म. दीज आर कॉल्ड थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर. ये क्या है? हमारे वाटर के थ्री फॉर्म्स है: सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous vapor. See children, see अभी मैंने आपको बताया solid form is ice. Solid form is ice. Then liquid मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं उसे बोलते हैं liquid form. पतला होता है ना पानी, हम लोग easily swallow कर सकते हैं, हम उसको निगल सकते हैं. वेपर और गैस, जब आप थर्मस में जब मैंने आपको खोलकर दिखाया तो भाप निकल रही थी गरम गरम. फॉर एग्जाम्पल, अगर जब आप पानी गरम करके लिए रखते हो गैस पे, मम्मी कुछ कुकिंग कर रही है, कुकिंग करते वक्त जो यूटेंसिल्स रखा हुआ होता है गैस पे उसमें से गरम गरम भाप निकलती है, isn't it? मम्मी बोलती है ना, गरम है हाथ मत लगाओ, चटका लगेगा, भाप लगेगी. Why she will tell that? Because it is hot and that liquid form is changed into gas form, vapor form. Okay children. Now another thing is that water in nature, water cycle. Water in nature means what? पानी जो है हमें कहाँ से मिलता है? क्या हम लोग जैसे सोफा बनाता है, कारपेंटर सोफा बनाता है, isn't it? मम्मी घर में कुकिंग करती है, अच्छा खाना बनाती है, क्या वैसे ही हम लोग पानी बना सकते हैं? कैन वी कुक वाटर? हम लोग पानी तैयार कर सकते हैं क्या? नो, वी कांट प्रिपेयर वाटर, वी कांट मेक वाटर. इट इज अ नेचुरल थिंग. पानी क्या है? नेचुरल थिंग है, वो हमें नेचर से मिलती है. इसे कोई बना सकता है क्या? पानी को कोई बना सकता है क्या? You can make, I can make. क्या मैं पानी बना सकती हूँ? No. आप लोग पानी बना सकते हो? No. तो फिर हमें कहाँ से मिलेगा ये पानी? ये पानी हमें मिलेगा नेचर से. कहाँ से मिलेगा? नेचर से. For example, see here. Water in clouds come down in the form of rain and snow. देखो children, ये जो क्लाउड्स होते हैं, अभी फिलहाल हम लोगों के पास रेनी सीजन चल रहा है ना? रेनी सीजन चल रहा है. तो रेनी सीजन में क्या होता है? यूजुअली क्या होता है? काले काले बादल आते हैं, है ना? और फिर जोर से बारिश शुरू हो जाती है, isn't it? बारिश शुरू होने के बाद क्या होता है? वहां से क्लाउड्स में से क्या होते हैं? ये पानी के ड्रॉप्स गिरना शुरू होते हैं. एग्जैक्टली. ये जब पानी के ड्रॉप्स नीचे ज़मीन पे आते हैं, अर्थ पे आते हैं, वो अर्थ पे आने के बाद यहाँ पे रिवर्स में जमा हो जाते हैं. ओके, ये रिवर में जमा हो जाते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन? यू नो, ये सन दिख रहा है आपको? सन कैसा है? कूल होता है क्या? बहुत ठंडा होता है क्या? नो, इट इज वेरी हॉट.
सन कैसा है? बहुत गर्म है, बहुत हॉट है। उसमें से क्या निकलती है? हीट। सन गिव्स अस हीट। गर्मी होती है ना, जब ज़्यादा धूप गिरती है तो बहुत सारी गर्मी होती है, हम लोगों को पसीना आता हुआ रहता है, isn't it? आप लोगों ने देखा है जब हम लोग मिट्टी पे पानी मारते हैं और धूप ज़्यादा होती है तो फटाक से क्या हो जाता है? वो मिट्टी पे का पानी सूख जाता है, isn't it? मिट्टी पे का पानी सूख जाता है ना। Why it happens? Because sun has got heat, it is hot. और सन की जो गर्मी होती है वो पानी को क्या करती है? वेपर में ट्रांसफर करती है। ये जो सन की गर्मी है, आप लोग जब भगोने पातीले में गैस के ऊपर पानी रखते हो तो क्या होता है? चाय बनाने के लिए मम्मी छोटे से पातीले में गैस के ऊपर पातीला रख देती है चाय बनाने के लिए, और अगर गैस फास्ट हुआ, भगोना के पातीला ज़्यादा गर्म होने से क्या हो जाता है? उसमें का पानी जो है भाप बनकर सूख जाता है, isn't it? सेम वे यहाँ पे भी क्या होता है? ये जो सन है, ये सन गर्म होने की वजह से ये जो रेन वाटर यहाँ पे रिवर्स में जमा हुआ होता है, इसको ये क्या करता है? सुखाने लगता है, वेपर्स में ट्रांसफर करता है, गैस में ट्रांसफर करता है, और ये सारे वेपर्स, ये सारे गैस फॉर्म्स जाकर कहाँ पे जमा होते हैं? क्लाउड्स में जमा होते हैं, एंड देन वी गेट रेन, एंड इन दिस फॉर्म वी विल गेट वाटर ऑन द अर्थ। See here children, this is river, this is वाटर साइकिल। हम लोग क्या सीख रहे हैं? वाटर साइकिल सीख रहे हैं। वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या है? वाटर साइकिल मीन्स व्हाट? हमें जमीन पे पानी कैसे मिलेगा, अर्थ पे पानी कैसे मिलेगा? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दैट? टू गेट रेन ऑन द अर्थ, बारिश आने के लिए क्या प्रोसेस होता है? ये जो रिवर्स होते हैं, ये रिवर्स को क्या करता है? ये सन बहुत ज़्यादा हीट देता है, गर्मी देता है, और ये सारा पानी वेपर्स में ट्रांसफ़र होता है, वेपर्स में, और वो गैस फॉर्म बन के यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। ओके, ये क्लाउड्स बनने के बाद यहाँ पे हम लोगों को आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं पानी से भरे हुए। एग्जैक्टली कैसे आता है फिर वो? ये जो समंदर का रिवर्स का पानी होता है, ये सन की वजह से वेपर्स में ट्रांसफर होता है और फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, ब्लैक कलर के क्लाउड्स बन जाते हैं, और ये क्लाउड्स हम लोगों को क्या देते हैं? फिर रेन देते हैं, रेन, और ये रेन से हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है, एंड दिस वाटर गेट्स ऑन द अर्थ, ये झाड़ों को मिलता है, ट्रीज को मिलता है, यहाँ पे नीचे अर्थ पे ज़मीन पे गिरता है, एंड अगेन दिस वाटर इज कलेक्टेड इन द रिवर्स। ये जो बारिश का पानी नीचे आ रहा है, अर्थ पे ज़मीन पे आ रहा है, ये पूरा पानी फिर से कहाँ पे जाके जमा होता है? रिवर्स में जमा होता है, और फिर ये रिवर्स सन की वजह से फिर वेपर्स में ट्रांसफर होके फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर क्लाउड्स बन के बारिश देते हैं, बारिश फिर आकर अर्थ पे गिरती है, फिर ज़मीन पे जो बारिश होती है उसका पूरा पानी यहाँ पे रिवर्स में कलेक्ट होता है। दिस प्रोसेस व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू गिव this page a heading. What is the heading of this? Water cycle. This is called water cycle. Now children, what you have to do, you know, I have explained you water cycle, how we get rain, what is the form of getting rain, बारिश कहाँ से मिलती है, टीचर ने आपको अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। Now what you have to do, you have to color these pictures,
you have to nicely color this water cycle. This one is for your homework. Okay children, did you all understood what is water cycle? First, we have studied the three forms of water. Three forms of water are solid, liquid and vapor, or you can call it as gas form. These are the main three forms of water. After that, we have studied a water cycle. Water in nature, how we get water from the nature. Isn't it children? Just now I have explained you the water cycle. So this is the process from which we are getting water to use, to drink, many more things. Okay children, did you all understood children the three forms of water? And after that I have explained you the water cycle. That's why we tell you to save waters. Water is our life. Water क्या है? हमारी life है. बिना वाटर के we can't live our life. हम लोग पानी के बिना जिंदगी जी सकते हैं क्या? No, we can't survive. Because for each and everything we need water. Each and everything. Early in the morning when you get up, from that time till the time you go to bed, you need water for each and every purpose. Isn't it? So you have to save water. You don't have to waste water children. Okay, you have to save water. So save water and stay fit and fine, safe. Till then, bye.